बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव वगैरह ये आपको बताए थे। तो क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। 11 हमने एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 is you are given y is equal to f of x is equal to e raised to the power x multiplied by 1 minus x square. आपसे कहा गया है फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन एट एनी पॉइंट। फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव। तो आप ये सवाल फर्स्ट डेरिवेटिव कम से कम 2 दफ़ा तो पहले कर चुके हैं। बहरहाल देख लें, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स with respect to x, we write d upon dx of y is equal to d upon dx of e raised to the power x multiplied by 1 minus x square. सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपके दिमाग पे आएगा। फर्स्ट फंक्शन इट इज e पावर x एंड सेकंड फंक्शन it is 1 minus x square. Derivative of product of two functions, it is equal to first function multiplied by derivative of the second function plus second function multiplied by derivative of the first function. First function into derivative of the second plus second function into derivative of the first function. Now it is equal to e raised to the power x multiplied by derivative of 1 is 0, derivative of x square is 2x, 0 minus 2x it is minus 2x plus 1 minus x square as it is, derivative of e raised to the power x remains same. Now e raised to the power x can be taken common. बाकी बच जाएगा minus 2x from first term plus 1 minus x square from second term. Arrange कर लें तो e raised to the power x multiplied by 1 minus 2x minus x square. ये हो गया dy by dx. It is the first derivative of the given function. अब चूंकि फोर्थ डेरिवेटिव आपसे कहा गया है तो फिर डिफरेंशिएट करें। We write again differentiate with respect to x. We write d upon dx of dy by dx. It is equal to d upon dx of e raised to the power x multiplied by 1 minus 2x minus x square. Again we use product of two functions. अब फर्स्ट फंक्शन e raised to the power x है और सेकंड फंक्शन 1 minus x square. ये बन जाएगा d2 upon dx2 of y, यानी second derivative of y, it is equal to first function multiplied by derivative of the second function plus second function 1 minus 2x minus x square as it is, into derivative of the first function.
अब ये हो जाएगा e रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 with minus sign, minus derivative of x square is 2x plus 1 minus 2x minus x square as it is into derivative of e power x remains same. एक दफ़ा फिर e रेज टू द पावर x आप कॉमन लें, e पावर x कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में बच गया -2 और सेकंड टर्म में बच जाएगा +1 -2x x square. From first term -2 and from second term 1 -2x x square. मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो सेकंड डेरिवेटिव सिंप्लीफाई भी करें और इसे रीअरेंज भी कर लें. तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, it is equal to e raised to the power x multiplied by minus x square. -2x is -4x and -2 plus 1 it is equal to -1. आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लें, आप चाहें तो डायरेक्ट इसी तरह से ही डिफरेंशिएट कर लें. एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करें. अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, we write d upon dx of the second derivative, d upon dx of the second derivative is equal to d upon dx of e raised to the power x multiplied by minus x squared minus 4x minus 1. तो एक दफ़ा फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन की जगह पे है e पावर x और सेकंड फंक्शन की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1. तो ये अब हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव यानी d3y upon dx3. Third derivative of y is equal to first function multiplied by derivative of the second function minus x squared minus 4x minus 1 plus minus x squared minus 4x minus 1 multiplied by derivative of the first function e raised to the power x. Now it is equal to e raised to the power x multiplied by minus 2x minus 4 minus 0 plus minus x squared minus 4x minus 1 as it is, and derivative of e power x remains same. e power x is again common. फर्स्ट टर्म में बच गया -2x minus 4 और सेकंड टर्म में बच गया -x squared minus 4x minus 1. Now it is equal to e raised to the power x multiplied by minus x squared minus 6x minus 4 minus 1 it is minus 5. ये हो गया थर्ड डेरिवेटिव d3y upon dx3. एक दफ़ा फिर आप यही काम करें क्योंकि क्वेश्चन था फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट. वंस अगेन डिफरेंशिएट with respect to x. ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द थर्ड डेरिवेटिव यानी d अपॉन dx ऑफ d3y अपॉन dx3 पढ़ा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द थर्ड डेरिवेटिव. It is equal to d upon dx of e raised to the power x multiplied by minus x squared minus 6x minus 5. ये हो गया d4y डिवाइडेड बाय dx4 यानी फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y. एक दफ़ा फिर
वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन की जगह पे है e पावर x और सेकंड फंक्शन की जगह पे है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5। तो अब ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन e raised to the power x multiplied by derivative of the second function minus x square minus 6x minus 5 plus minus x square minus 6x minus 5 multiplied by derivative of e raised to the power x. E raised to the power x as it is, derivative of minus x square is minus 2x, derivative of minus 6x is minus 6, and derivative of 5 is 0, plus minus x square minus 6x minus 5 multiplied by derivative of e power x remains है। आप e raised to the power x कॉमन ले सकते हैं। e raised to the power x कॉमन लिया तो बाकी बच गया minus 2x minus 6 from first term minus x square minus 6x minus 5 from second term। इसका मतलब d4 y divided by dx4, fourth derivative of y, it is e raised to the power x multiplied by minus x square minus 8x minus 11। आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लें तो ये बन जाएगा माइनस e raised to the power x multiplied by x square plus 8x plus 11। ये हो गया भाई फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब अगर फर्ज करें मैं कह दूं फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आप x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर मैं कह दूं फाइंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा minus e power 1 is minus e, 1 square is 1, 8 into 1 is 8 plus 11, 1 plus 8, 9 plus 11, 12. The answer will be minus 20e. अगर मैं कह दूं फाइंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू माइनस 1, तो आप x को माइनस 1 से रिप्लेस कर दें। अगर हम आपसे कहें फाइंड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 या माइनस 2 या कोई भी नंबर कह दें, तो आपको x की जगह पे वो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके रिजल्ट मालूम कर लेना चाहिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, let a b belongs to real number y is equal to f of x is equal to a cos x plus b sin x। क्वेश्चन नंबर 13, y is equal to f of x is equal to a cos x plus b sin x। ये तो आपको दे रखा है, आपसे कहा गया है शो दैट second derivative of y d2y upon dx2, second derivative of y plus y is equal to 0। ये प्रूव करने के लिए क्योंकि हमें ज़रूरत है सेकेंड डेरिवेटिव की, तो आप ये रिलेशन वेरीफाई करने के लिए पहले तो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लें। कंसीडर द गिवन फंक्शन, कंसीडर y is equal to f of x is equal to a cos x plus b sin x। दो दफ़ा डिफरेंशिएट करके सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स with respect to x, so we write d upon dx of y is equal to d upon dx of
a cos x plus b sin x। ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम और डिफरेंस आपको याद आ रहा होगा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d upon dx of the second term. Now constant can be taken outside, so dy by dx is equal to a multiplied by d upon dx of cos x plus b multiplied by d upon dx of sin x. So dy by dx is equal to a multiplied by derivative of cos x, it is minus sin x, plus b as it is derivative of sin x is equal to cos x. इसका मतलब dy by dx it is equal to minus a sin x plus b cos x. ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। चूँकि जो चीज़ आपको वेरीफाई करनी है, प्रूव करनी है, उसमें सेकंड डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है, तो एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करें। अगेन differentiate with respect to x, we write d upon dx of y, d upon dx of dy by dx is equal to d upon dx of minus a sin x plus b cos x। ये हो गया d2y अपॉन dx2, यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, सम और डिफरेंस इस्तेमाल करें तो माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ a sin x plus derivative of b cos x. Constants can be taken outside, ये हो गया minus a into derivative of sin x plus b into derivative of cos x. Now it is equal to minus a multiplied by derivative of sin x is equal to cos x plus b as it is derivative of cos x, it is minus sin x। अब ये हो गया माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, इट इज d2y अपॉन dx2। अब आप असल सवाल की तरफ आइए। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना था? आपको प्रूव करना था d2y अपॉन dx2 प्लस y is equal to 0. Consider left hand side. Left hand side is d2y अपॉन dx2 प्लस y। अब d2y अपॉन dx2 यानी सेकंड डेरिवेटिव ये आप फाइंड कर चुके हैं, इट इज माइनस a इंटू कॉस एक्स माइनस b इंटू साइन एक्स प्लस एज इट इज, and y is the given function which is equal to a cos x plus b sin x। प्लस मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है कोई चेंज नहीं, तो माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब अगर आप गौर करें तो माइनस ए कॉस एक्स भी कैंसिल हो गया और माइनस बी साइन एक्स भी कैंसिल हो गया, तमाम टर्म्स कैंसिल हो गई, तो इसका मतलब इट इज ज़ीरो and it is the required right hand side, because left hand side is equal to right hand side, so this identity is verified।
अब इसी तरह का ही है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 वो भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 14, you are given y is equal to f of x is equal to a e raised to the power x plus b e raised to the power 2x plus c e raised to the power 3x. Prove that third derivative of y minus 6 times second derivative of y plus 11 times first derivative of y minus 6y is equal to 0. We have to prove that this relation. अब इस रिलेशन में चूंकि थर्ड डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप थर्ड डेरिवेटिव का काम कंप्लीट कर लें। 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करके आप थर्ड डेरिवेटिव तक पहुँचें, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे जो वेरीफाई करना है। कंसीडर y which is equal to a e raised to the power x plus b e raised to the power 2x plus c e raised to the power 3x. Differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of y is equal to d upon dx of a e raised to the power x plus b e raised to the power 2x plus c e raised to the power 3x. आपके दिमाग में सबसे पहले तो सम और डिफरेंस आएगा। We write derivative of a e raised to the power x plus derivative of b e raised to the power 2x plus derivative of c e raised to the power 3x. Now constants can be taken outside the operator. So we write a into derivative of e raised to the power x plus b into derivative of e raised to the power 2x plus c into derivative of e raised to the power 3x. A as it is, derivative of e power x is same plus b as it is, derivative of e raised to the power function. It is e raised to the power function into derivative of function. So derivative of 2x, it is 2 plus c into, again use derivative of e power function, it is e raised to the power function as it is into derivative of function, यानी derivative of 3x, it is 3. यानी फर्स्ट टर्म में तो फॉर्मूला है e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही आ गया, लेकिन सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में e पावर फंक्शन, तो फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2, 3x का डेरिवेटिव 3, ये हो जाएगा a e रेज टू द पावर x प्लस 2b e रेज टू द पावर 2x प्लस 3c e रेज टू द पावर 3x। ये हो गया dy by dx, first derivative of the given function. एक दफा फिर डिफरेंशिएट करें, again differentiate with respect to x. So we write d upon dx of dy by dx is equal to d upon dx of a e raised to the power x plus 2b e raised to the power 2x plus 3c e raised to the power 3x.
ये हो गया d2y upon dx2. It is equal to, again we use sum or difference. So derivative of a e raised to the power x plus derivative of e raised to the power 2b e raised to the power 2x plus derivative of 3c e raised to the power 3x. Constants can be taken outside. Constants को बाहर लिखें तो ये हो जाएगा a into derivative of e raised to the power x plus 2b constant taken outside derivative of e raised to the power 2x plus 3c is constant taken outside derivative of e raised to the power 3x. Now it is equal to a e raised to the power x, its derivative is same, plus 2b into derivative of e power 2x is e power 2x multiplied by derivative of 2x is 2 plus 3c multiplied by, again use derivative of e power function, so it is e power function into derivative of function. The derivative of 3x is 3. इसका मतलब ये हो गया a e raised to the power x plus 4b e raised to the power 2x plus 3c into 3 is 9c e raised to the power 3x. ये हो गया d2y upon dx2, second derivative of the given function. एक दफा फिर डिफरेंशिएट करें. Once again differentiate with respect to x. We write d upon dx of d2y upon dx2. It is equal to d upon dx of a e raised to the power x plus 4b e raised to the power 2x plus 9c e raised to the power 3x. ये हो गया थर्ड डेरिवेटिव यानी d3y divided by dx3. It is equal to sum और डिफरेंस यूज करें तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म a e power x plus derivative of second term 4b e raised to the power 2x plus derivative of third term 9c e raised to the power 3x. Constants को बाहर निकालें. A constant taken outside, we left derivative of e raised to the power x plus 4b is constant taken outside derivative of e raised to the power 2x plus 9c constant taken outside derivative of e raised to the power 3x. अब ये हो गया a multiplied by derivative of e power x remains same plus 4b as it is derivative of e power function. It is e power function multiplied by derivative of function. So derivative of 2x it is 2 plus 9c into derivative of e power 3x is same e power 3x multiplied by derivative of 3x it is 3. तो ये हो गया भाई a e raised to the power x plus 4b e raised to the power 2x 8b plus 27c e raised to the power 3x. ये हो गया d3y upon dx3, third derivative of the given function. अब आइए असल सवाल की तरफ. असल सवाल क्या था? We have to prove that third derivative of y
prove we have to prove that third derivative of y minus 6 times second derivative of y plus 11 times first derivative of y minus 6y. We have to prove that it is equal to 0. Consider left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपने सारे फैक्टर्स मालूम कर लिए. लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू d3y upon dx3 minus 6 into d2y upon dx2 plus 11 dy by dx minus 6y. वैल्यूज पुट कर दें. थर्ड डेरिवेटिव आप फाइंड कर चुके हैं. इट वाज a e पावर x प्लस 8b e raised to the power 2x plus 27c e raised to the power 3x. ये तो था थर्ड डेरिवेटिव. माइनस 6 एज इट इज. सेकेंड डेरिवेटिव था a e पावर x प्लस 4b e raised to the power 2x plus 9c e raised to the power 3x. ये था सेकेंड डेरिवेटिव. प्लस 11 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव था a e पावर x प्लस 2b e raised to the power 2x plus 3c e raised to the power 3x. Minus 6 as it is y, and y is the given question, which was a e power x plus b e power 2x plus c e power 3x. अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें. a e पावर x प्लस 8b e raised to the power 2x plus 27c e raised to the power 3x. माइनस 6 को मल्टीप्लाई करें. माइनस 6a e पावर x minus 24b e raised to the power 2x minus 54c e raised to the power 3x. अब प्लस 11 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 11a e raised to the power x प्लस 22b e raised to the power 2x प्लस 33c e raised to the power 3x. माइनस 6 मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट फैक्टर से तो माइनस 6a e raised to the power x माइनस 6b e raised to the power 2x माइनस 6c e raised to the power 3x. अब लाइक टर्म्स को अलहदा करें. लाइक टर्म्स कौन सी हैं जिनमें e पावर x है. एक तो है भाई a e raised to the power x और है माइनस 6a e raised to the power x. फिर है प्लस 11a e raised to the power x और लास्ट में है माइनस 6a e raised to the power x. ये लाइक टर्म्स जिसमें e पावर x है. अब b की टर्म्स हैं प्लस 8b e raised to the power 2x minus 24b e raised to the power 2x plus 22b e raised to the power 2x
और फिर है -6 बी ई रेज टू द पावर 2x। ये हो गई बी की टर्म्स, ये भी सिंप्लीफाई हो सकती हैं, एक साथ लिख लिया। अब सी की टर्म्स हैं प्लस 27c e रेज टू द पावर 3x minus 54c e raised to the power 3x plus 33c e raised to the power 3x minus 6c e raised to the power 3x। अब अगर आप गौर करें, ये लाइक टर्म्स a प्लस 11a 12a माइनस 6a माइनस 6a माइनस 12a, यानी ये हो गया 12a e पावर x माइनस 12a e पावर x। इसका मतलब ये तमाम टर्म्स कैंसिल हो। इसके बाद देखें b की टर्म्स, तो 8b प्लस 22b इज 30b माइनस 24b माइनस 6b इज माइनस 30b। इसका मतलब ये हुआ कि b की टर्म्स भी कैंसिल हो गई। 30b e पावर 2x माइनस 30b e रेज टू द पावर 2x, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए c की टर्म्स, तो 27c प्लस 33c इट इज 60c e पावर 3x माइनस 54c minus 6 is minus 60c e raised to the power 3x। इसका मतलब ये टर्म्स भी कैंसिल हो गए। जब तमाम टर्म्स कैंसिल हो गई तो इसका मतलब मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू 0। सब कुछ ही कैंसिल हो गया एंड इट इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस आइडेंटिटी इज वेरीफाइड। तो ये तो थे भाई हायर डेरिवेटिव्स। अब डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है, इट इज सेड टू बी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, तो एक सवाल पहले देख लें। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, तो सवाल करने से पहले, बुक के क्वेश्चन करने से पहले एक सवाल पहले देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो आप इसे तो डिफरेंशिएट कर लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। आपको तो x की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना आता है। आप किसी और फंक्शन की रेस्पेक्ट से अगर डिफरेंशिएट करें, किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, तो ये डिफरेंशिएशन कहलाती है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो इसमें डिफरेंशिएशन नहीं बदलती, इसमें थोड़ी सी चालाकी की ज़रूरत पड़ती है। वो चालाकी सीख लें, हालांकि आप तो चालाक हैं। लेट फर्स्ट फंक्शन इज u is equal to x squared minus 2x plus 3. Let v is the second function. It is x squared minus 4x plus 5. इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 1, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2।
अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या फाइंड कर सकते हैं। मेरा ख्याल में फर्स्ट इक्वेशन से डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप डिफ्रेंशिएट करें इसे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वी गेट डी अपॉन डी एक्स ऑफ u is equal to d upon dx of x squared minus 2x plus 3. So du upon dx, it is equal to 2x minus 2. So du upon dx, it is equal to 2 can be taken common, you left x minus 1. आप चूंकि फर्स्ट इक्वेशन से यही फाइंड कर सकते थे, आपने फाइंड कर लिया। नाउ कम टू द सेकेंड इक्वेशन। चूंकि इसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो आप x की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट d अपॉन dx ऑफ v is equal to d upon dx of x squared minus 4x plus 5। इसका मतलब dv upon dx is equal to derivative of x square is 2x, derivative of 4x is 4, and derivative of 5 is 0. So dv upon dx, it is equal to 2 can be taken common, you left x minus 2. ये हो गया dv upon dx। अब आप थोड़ी देर के लिए गौर करें। आपने फर्स्ट फंक्शन जिसे डिफरेंशिएट करना था उसे u कहा, सेकेंड फंक्शन जिसकी रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना था इसे v कहा। इसका मतलब क्वेश्चन है डिफरेंशिएट u बिकॉज इट इज फर्स्ट फंक्शन, इसका नाम आपने रखा था u विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन को हमने कहा v। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी v अपॉन डी एक्स फाइंड कर लिया। असल सवाल तो फिर भी बाकी रहा। असल सवाल क्या था? वी हैव टू फाइंड डी यू अपॉन डी वी। डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन जिसका नाम था u विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन जिसे आपने कहा v। तो डी यू अपॉन डी वी ये सवाल था। अब चालाकी इसमें ये है कि डी यू अपॉन डी वी डी एक्स ये आप फाइंड कर चुके, डी वी अपॉन डी एक्स ये भी आप फाइंड कर चुके। अगर मैं डिवाइड कर दूं डी यू अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी अपॉन डी एक्स, इनडायरेक्टली ये डी एक्स कैंसिल हो गया, बाकी वही बच गया डी यू अपॉन डी वी। तो डी यू अपॉन डी एक्स आप फाइंड कर चुके। डी यू अपॉन डी एक्स इट वॉज 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1, डी वी अपॉन डी एक्स इट वॉज 2 इंटू एक्स माइनस 2। 2 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये है डी यू अपॉन डी वी, यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। इस टाइप की डिफरेंशिएशन जिसमें एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया जाना हो, ये कहलाती है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक ये क्वेश्चंस पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हैं और यही आपकी डेरिवेटिव्स का लास्ट टॉपिक है। तो मैं 5-6 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ आपको। आप पानी वानी पीना चाहें पानी पी लें, चाय पीना चाहें चाय पी लें। ओनली 5 मिनट। आपको मीटिंग जो है वो हम ख़त्म नहीं कर रहे, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसी मीटिंग को हमने कंटिन्यू करना है। तो 5 मिनट में आप पानी वानी पी के क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक देखना चाहें तो एक दफ़ा देख लें, उसके बाद हम
चलें भाई, पानी वानी तो पी लिया होगा आपने और क्वेश्चंस भी शायद देख लिए होंगे। आप पहले तो देखें क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4 कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या ख़ास बात है इस क्वेश्चन में, ये अब आप खुद गौर कीजिएगा। मैंने बता दिया कि 1 से लेके 6 तक ये क्वेश्चंस पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। तो सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड dy by dx। Find dy by dx. You are given x is equal to a multiplied by theta minus sin theta। ये एक इक्वेशन दे रखी है। और y is equal to a multiplied by 1 minus cos theta। ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन भी थीटा की फॉर्म में, दूसरी इक्वेशन भी थीटा की फॉर्म में। आपसे कहा गया है फाइंड dy by dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, इसका मतलब आप थीटा की रेस्पेक्ट से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कंसीडर x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई थीटा माइनस साइन थीटा। So independent variable is theta, so differentiate this equation with respect to theta। इसका मतलब we write d upon d theta of x is equal to d upon d theta of a multiplied by theta minus sin theta। A is constant taken outside, d upon d theta of theta minus sin theta, सम और डिफरेंस की शक्ल बन गई। A multiplied by derivative of theta minus derivative of sin theta। A multiplied by derivative of theta is 1 and derivative of sin theta it is cos theta। ये आपने रिजल्ट फाइंड कर लिया dx अपॉन d थीटा का। चूंकि इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू थीटा ही डिफरेंशिएट किया जा सकता था, आपने थीटा की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करके dx अपॉन d थीटा फाइंड कर लिया। नाउ कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। चूंकि इसमें भी थीटा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इसे भी थीटा की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो ये बन जाएगा d अपॉन d थीटा of y is equal to d upon d theta of a multiplied by 1 minus cos theta। A is constant taken outside, we write derivative of 1 minus cos theta। आप सम और डिफरेंस यूज कर सकते हैं। a multiplied by derivative of 1 minus derivative of cos theta। Now it is equal to a multiplied by derivative of 1 is 0 minus derivative of cos theta is minus sin theta। It is equal to a multiplied by 0 plus sin theta which is equal to sin theta। इसका मतलब dy अपॉन d थीटा, ये आपको मालूम हो गया, इट इज a इंटू साइन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन से आपने
फाइंड किया था डी एक्स अपॉन डी थीटा, सेकेंड इक्वेशन से डी वाई अपॉन डी थीटा। अब असल सवाल की तरफ आइए। असल सवाल है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इसे आप लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा होल डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। आपको डी वाई अपॉन डी थीटा भी मालूम है, आपको डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू भी मालूम हो चुकी है। तो dy upon d theta, it is a multiplied by sin theta. dx upon d theta, it is a multiplied by 1 minus cos theta. a कैंसिल हो गया, बाकी बच गया sin theta डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos theta. ये हो गया dy upon dx. अब चूंकि आपसे कहा गया है फाइंड dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब थीटा को रिप्लेस कर दें पाई बाई 2 से। तो dy बाई डी थीटा dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। इट इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 it is 1, cos pi by 2 it is 0. It is equal to 1 divided by 1 and 1 divided by 1 it is equal to 1. ये हो गया dy बाई डी एक्स। अगर कह दिया जाता फाइंड dy बाई डी एक्स, ये आंसर था। चूंकि यहाँ कहा गया है फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के बाद आप थीटा को रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 2 से, तो जो भी रिजल्ट आया वो आपके सामने है। ये सवाल कई दफ़ा इम्तहान में पूछा जा चुका है, उम्मीद है कि ये दिमाग में अब आप रखेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is find dy by dx. You are given again two equations. X is equal to ln t plus sin t. Equation number 1. And y is equal to e raised to the power t plus cos t. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो आप t की रेस्पेक्ट से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कंसीडर इक्वेशन 1, x is equal to ln t plus sin t. Differentiate both the sides with respect to t. इसका मतलब ये हो जाएगा d upon dt of x is equal to d upon dt of ln t plus sin t. सम और डिफरेंस यूज करें तो डेरिवेटिव ऑफ ln t plus derivative of sin t. The derivative of ln t is 1 upon t. Derivative of sin t, it is cos t. t is the LCM. t LCM लें तो ये हो जाएगा 1 plus t into cos t. ये रिजल्ट हो गया dx divided by dt का। Now consider equation number 2. Equation number 2 is y is equal to e raised to the power t plus cos t. यहाँ भी
इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, we write d upon dt of y is equal to d upon dt of e raised to the power t plus cos t. सम और डिफरेंस इस्तेमाल करें, सम और डिफरेंस इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा भाई dy अपॉन dt is equal to derivative of e raised to the power t plus derivative of cos t. Derivative of e power t remains same and derivative of cos t it is equal to minus sin t. ये हो जाएगा e पावर t माइनस साइन t. ये बन गया dy अपॉन dt. आप फर्स्ट इक्वेशन से dx अपॉन dt और सेकेंड इक्वेशन से dy अपॉन dt फाइंड करने में कामयाब हो गए. असल सवाल क्या है? असल सवाल है वी हैव टू फाइंड dy बाई dx. तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt होल डिवाइडेड बाई dx upon dt. dy upon dt it is e raised to the power t minus sin t divided by dx upon dt it is 1 plus t into cos t divided by t. इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए तो ये बन जाएगा e raised to the power t minus sin t multiplied by t upon 1 plus t into cos t can be written as t multiplied by e power t minus sin t whole divided by 1 plus t into cos t. It is the result of dy by dx, derivative of the given function. Now see question number 6 also. Question number 6 है भाई find dy by dx when x is first equation and y is second equation. X find dy by dx when x is equal to sin t power 3 plus cos t power 3, equation number 1, and y is equal to sin t plus 2 cos inverse t. पहले तो फर्स्ट इक्वेशन को देखें. Consider equation number 1. It is equal to x equals to sin t cube plus cos t cube. क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t. ये हो गया d अपॉन dt ऑफ x. It is equal to d upon dt of sin t power 3 plus cos t power 3. So dx upon dt is equal to sum or difference. So we use d upon dt of sin t power 3 plus d upon dt of cos t power 3. यहाँ आम तौर पे बच्चे गलती करते हैं. It's not
लाइक फंक्शन रेज टू द पावर है। यहाँ पावर 3 जो दे रखी है वो एंगल के ऊपर है, ये साइन के ऊपर नहीं है। अगर ये साइन क्यूब भी होता तो फंक्शन पावर एन यूज करते, लेकिन ये चूंकि पावर एंगल के ऊपर है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। साइन का डेरिवेटिव कॉस विद सेम एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल है टी क्यूब। इसी तरह कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन विद सेम एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल d upon dt of t cube. Now it is equal to cos t power 3, derivative of t cube is 3t square, minus sin t cube into derivative of t cube, it is 3t square, like derivative of x power n. दोनों टर्म्स में से आप 3t स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी बचेगा cos t पावर 3 माइनस साइन t पावर 3। ये रिजल्ट हो गया dx अपॉन dt का। इसे संभाल के रखें। Now consider equation number 2. Consider equation number 2, which is y is equal to sin t plus 2 cos inverse t। तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो we differentiate with respect to t. We write d upon dt of y, d upon dt of y is equal to d upon dt of sin t plus 2 cos इनवर्स t। तो सबसे पहले तो आप सम और डिफरेंस यूज करें। ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ साइन t प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 cos इनवर्स t। Now derivative of sine, it is equal to cos with same angle plus 2 is constant, and derivative of cos inverse t, it is minus 1 upon square root of 1 minus t squared. It is same as derivative of cos inverse x, which is minus 1 upon root 1 minus x squared. इसे लिखा जा सकता है cos t minus 2 upon square root of 1 minus t square। एलसीएम लें, एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस टी माइनस 2। इट इज द रिजल्ट ऑफ डी वाई अपॉन डी टी। आपने फर्स्ट इक्वेशन से dx अपॉन dt फाइंड किया, आपने सेकेंड इक्वेशन से dy अपॉन dt फाइंड कर लिया। अब असल सवाल की तरफ आइए। असल सवाल क्या है? यू हैव टू फाइंड dy बाय dx। dy बाय dx it is equal to dy upon dt whole divided by dx upon dt। dy upon dt is equal to square root of 1 minus t square cos t minus 2 divided by square root of 1 minus t square whole divided by dx upon dt, it is equal to 3t square multiplied by cos t power 3 minus sin t power 3। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1, इसे भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आइए। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस टी माइनस 2 divided by square root of 1 minus t square multiplied by 1 divided by
3t square into cos t power 3 minus sin t power 3. Now it is equal to square root of 1 minus t square multiplied by cos t minus 2, 1 से multiply हुआ no change, divided by 3t square into square root of 1 minus t square multiplied by cos t power 3 minus sin t power 3. ये हो गया भाई dy by dx. ये जो 3 सवाल मैंने कराए हैं, इनमें से कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो इम्तहान में पूछा ना जा चुका हो। और ये सवाल हैं वैसे ही जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कराया था कि डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। अब अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 अब आपको कर लेना चाहिए। x इज a cos स्क्वायर थीटा, थीटा की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, dx अपॉन d थीटा मिलेगा। क्वेश्चन इक्वेशन 2 से dy अपॉन d थीटा फाइंड करें, फिर dy बाई dx के लिए आप डिवाइड करके dy बाई dx मालूम कर सकते हैं। एट थीटा इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 4, इसका मतलब इसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो तो वो तो पुट करते हैं, नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 4, इसका मतलब ये पाई बाई 4 पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको ये वैल्यू पुट करके दिखानी नहीं। बहरहाल फिर भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर बिलफर्ज प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। अब हमने शुरू करना है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। नाम ही से पता चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये जो आपने मेहनत की है डेरिवेटिव्स में, इसको एक दफ़ा कल तक रिवाइज कर लीजिएगा अच्छी तरह, ताकि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको मसला ना हो। चैप्टर नंबर 5, इसमें से भी हर साल 2 पार्ट आते हैं, हर साल आते रहेंगे। कभी कभी 3 पार्ट भी आ जाते हैं, 1-2 MCQs भी आ जाते हैं। उम्मीद है कि अपने हाल पे थोड़ा सा रहम करते हुए आप ये प्रैक्टिस करेंगे। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक ट्राई करेंगे, अगर बिलफर्ज हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो करा देंगे। डिफरेंशिएशन की एक दफ़ा फिर अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 1 जो 4.1 का था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, वो हमें याद है, वो चैप्टर नंबर 5 के भी एंड पे हम कराएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चैप्टर नंबर 5 इंटरेस्टिंग होगा अगर आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स, डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह की हुई है, रूल्स सारे याद हैं। ये परेशान कर देता है अगर आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स अच्छी तरह याद नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप तमाम रूल्स, तमाम एक्सरसाइजेज डिफरेंशिएशन की उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, फार्मूले रिवाइज करके बैठें। ओके, थैंक यू।